ضرورت ہے کہ ہمیں گھر میں کلام پڑھنا ضروری ہے؟ ایسی کون سی ضرورت ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا انتظام کیا جاتا ہے؟ ایسی کون سی خاص وجہ ہے؟ آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر لکھا ہے جو کلام کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر کرتا ہے، یعنی کلام کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، یا اس کو ڈینائی کر دیتا ہے، یا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یا اس پر عمل نہیں کرتا، وہ کلام کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے۔ بے حرمتی ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ بائبل کو اونچی جگہ پر رکھ دیں اور اس کو کسی نیچی جگہ پر نہیں آپ رکھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کی عزت کرنا ہے، اس کو پڑھنا، اس کی عزت کرنا ہے، اس کے الفاظ پر غور کر کے اپنے لیے ہی ہم بھلائی کو پیدا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور بھلائی ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب ہم اس پر توجہ کرتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا۔ ہاللیلویہ۔ وہ نقصان کی طرف ہے۔ اب ہلاکت کیا ہے؟ یہ تو عام موت ہے، اس کو ہلاکت نہیں، یہ تو آنی ہے کسی پر۔ اصل میں اگلی ابدی موت جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کہتا ہے جو کلام کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر کرتا ہے، یعنی جیسا خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق وہ چلتا نہیں ہے تو اس کی تحقیر ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس رکھنے لگا ہوں۔ خدا کا بندہ موسیٰ، خدا کا بڑا پیارا، اور خدا اس کے بارے میں کہتا ہے ہارون اور اس کی بہن مریم سے کہ میرا بندہ موسیٰ میرے سامنے روبرو بیٹھ کر میرے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر کلام کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، اس سے بھی ایک چھوٹی سی کلام کی تحقیر سمجھ گئے، جیسا اس کو کہا گیا اس نے ویسا نہیں کیا۔ گنتی کی کتاب نکالے میرے ساتھ 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھنا شروع ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جی ہاں جی، اس واقعے پر غور کریں، پڑھیں۔ 20 باب کی 7 آیت میں یہ لکھا ہے، جی جی، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہاں جی، اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو۔ ہاں جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا ان کی زندگی میں، ان کے معاملے میں، ان کے سفر میں ایک مسئلہ آ گیا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دوسری آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اکٹھا کرو اور ان نہیں، کی، دوسری آیت اوپر جائیں، دوسری آیت پرابلم دیکھیں گے کہ کیا پرابلم آئی ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر دوسری آیت 20ویں باب کی دوسری آیت اوپر جائیں تھوڑا سا۔ اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا۔ ہاں جی، ایک وقت آیا کہ یہ ملک مصر سے نکلے اور ملک کنعان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن رستے میں جاتے جاتے ایک وقت ایک جگہ ایسی آئی، قادس میں جب یہ رہنے لگے تو وہاں پر دشت سین کے اندر ان کو پانی نہیں ملا۔ پرابلم یہ تھی کہ پینے کا پانی نہیں تھا، یہ پرابلم تھی ان کی، صحیح ہے۔ اور یہ موسیٰ کے پاس گئے، ہارون کے پاس گئے اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ تو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے آیا ہے، تیری لیڈرشپ میں ہم چل رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے تو ہمیں کہتا ہے ویسے ہم کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو یہ خدا کے پاس گئے اور خدا نے پھر ان کو انسٹرکشن دی، خدا نے پھر ان کے ساتھ کلام کیا کہ تمہاری پرابلم، تمہیں پانی کیسے مل سکتا ہے، یا تم اس مصیبت پریشانی سے کیسے نکل سکتے ہو۔ یہ بات بھائی پڑھ رہے تھے، ابھی 7ویں آیت سے پڑھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ پرابلم اس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے، کیسے؟ اس لاٹھی کو لے۔ ہاں جی، موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس نے کہا اس لاٹھی کو لے، اور تو اور تیرا بھائی، ہاں جی، اور تو اور تیرا بھائی ہارون، ہاں جی، تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو۔ ہاں جی، تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، تمہارا یہ کام ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیا کرنا؟ اس چٹان سے کہو کہ، اس چٹان سے کہو۔ کیا کہا خدا نے؟ اس چٹان سے کہو۔ سب کہیں اس چٹان سے کہو، سب کہیں اس چٹان سے کہو، اس چٹان سے کہو۔ ہاں، یہ بات کہیں اس چٹان سے کہو۔ کیا کہا ہے خدا نے؟ چٹان سے
चट्टान से खुदा का कलाम क्या हो रहा है मूसा के साथ? मूसा को खुदा क्या कह रहा है? उस चट्टान से कहना तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। उस चट्टान के सामने सारे लोगों को इकट्ठा करना और सामने जाकर उस चट्टान से जाकर बात करना और उससे सिर्फ ये कहना कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी दो। हालेलुया। ये खुदा का कलाम था जो मूसा के जरिए से लोगों तक पहुंचना था। आगे जाकर क्या हुआ भाई, पढ़िएगा। वो अपना पानी दे, हाँ जी, उससे कहना है कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकाल। हाँ, तो उनके लिए खास बात है कि सिर्फ चट्टान से कहना, चट्टान ही को पानी देगी, चट्टान ही से पानी निकालना। फिर यूं जमात को और उनके हाँ जी, और जब वो पानी निकलेगा तो जमात को और उनके छुपाओं को पिलाना। ये था खुदा का कलाम जो खुदा ने मूसा के जरिए से उस जमात के साथ, उस पूरे ग्रोह के साथ और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हल खुदा ने बताया था। ये था वो हल। अब इसको क्या करना चाहिए? मूसा को क्या करना चाहिए? मूसा को जाना चाहिए और जाकर लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और जाकर चट्टान से कहना चाहिए कि पानी, अपना पानी दे। लेकिन इसने क्या किया? आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, 10वीं आयत। और मूसा और हारून ने जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा हाँ जी, किया। पहला काम उन्होंने सही किया। मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। पहला तो ये काम कर दिया। आगे, और उसने उनसे कहा, हाँ जी, उसने उनसे कहा सुनो। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा सुनो ए बागियो, सुनो ए बागियो, सुनो ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? आज ये सवाल उसने किया, थोड़ा जज्बाती होकर, थोड़ा सा गुस्सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गुस्से के साथ बात कर रहा है। ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकाले? मतलब उन्होंने पहले इतना गुस्सा मूसा को चढ़ाया हुआ था। मूसा ये भी भूल गया कि खुदा ने मैंने की क्या। मूसा इतना जज्बाती हो गया, वो यही भूल गया गुस्से से। खुदा ने पिछो कमांड कर दी है, खुदा ने क्या देता है? पानी निकलेगा। खुदा ने क्या इस मसले से तुसी निकल जाओगे। खुदा ने क्या तेरी मुसीबत परेशानी तो तुसी आजाद हो जाओगे। जस्ट करना की है वो भी खुदा ने नाम दसिया। लेकिन मूसा जाके कहता है ए बागियो सुनो, क्या तुम्हारे लिए चट्टान से हम पानी निकालें? आगे क्या हुआ? तब मूसा ने अपना हाथ हाँ जी, और यही इसी जज्बात के अंदर, इसी जोश के अंदर मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर दो बार लाठी मारी। क्या इसने कलाम के मुताबिक किया? खुदा ने क्या कहा था? अरुण भाई, खुदा ने क्या कहा था कि चट्टान से कहना? इसने कहा नहीं है, इसने जाकर 2 दफा उस चट्टान के ऊपर लाठी मारी। गड़बड़ हो गई। खुदा ने कहा सिर्फ कहना है जाके। इन्हें थोड़ा आगे काम कर, इन्हें जाके 2 दफा लाठी मारी। 2 दफा, एक दफा भी नहीं, 2 दफा लाठी मारी है। और कसरत से पानी बह निकला। मसला हल हो गया। मसला तो हल हो गया। मसला हल हो गया। कभी कभी ऐसे भी होता है, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल नहीं रहे होते, हम खुदा के बातों के मुताबिक या खुदा हमें जो कह रहा होता है हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। फिर भी हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा करता हूं तो जवाब आ जाता है, मैं ऐसा करता हूं तो मसलों का हल निकल आता है। इनके मसले का हल भी निकल आया। हालेलुया। पानी बह निकला और जमात ने और उनके छुपाओं ने सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ हुई है, कहने की जगह माना, बाकी सारे काम उसी तरह ही थे। हालेलुया। 12वीं आयत। फिर मूसा और हारून से हाँ जी, खुदावन ने कहा, हाँ जी, पानी निकल आया, सब खुश, अपने लोगों को पानी पिला रहे हैं, अपने चापाओं को पानी पिला रहे हैं। पूरा बियाबान के अंदर पानी पानी उनको नजर आना शुरू हो गया। जितने मसले पानी की वजह से रुके हुए थे वो सारे उन्होंने लोग अपने मसले हल करने लग गए। ते मूसा खुदावन चढ़ाया, वो मूसा नु कहंदा है इधर आ मूसा, जरा तू मेरी बात सुन। हाँ जी, खुदावन ने कहा चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया। हाँ जी, खुदावन ने मूसा से कहा कि तुमने मेरा यकीन नहीं किया और कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस, बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते। जैसा मैंने कहा था
तरीके से ये काम किया, हाँ काम तो हो गया है, लोग भी खुश हैं, लोग तेरी जय जयकार करेंगे या तुझे कहेंगे तो तू ठीक है, अच्छा लीडर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तूने खुदावंद मूसा से कहता है कि तूने मेरा यकीन नहीं किया और ना ही मेरी तकदीस की है मेरे कलाम की, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा था वो तुमने नहीं किया। हालेलुया। आगे, इसलिए तुम इस जमायत को, इसलिए अब सुन लो अगला काम क्या होगा। मूसा से कहा गया कि अब तूने इतनी सी बात पर मूसा को सजा दी गई है, इतना सा बात, कोई मसला तो नहीं सी ना, कह देता तां भी पानी आना सी, लाठी मार देती फिर भी पानी आया, लेकिन खुदा कहना जिस तरह मैं कहना उतना ही उस तरह कर। खुदा इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं करता। मूसा वो बंदा है जो खुदा के सामने बैठकर बातें करता है। मूसा वो बंदा है जो खुदा के सामने बैठकर बातें करता है। कैसी असी ते किसे खाते च नहीं आते, मूसा ते मूसा सी, खुदा ने मूसा को सजा देने लगे नहीं मना होया या पीछे नहीं हटिया या ओदी फेवर नहीं की, तो खुदा आज साड़ी फेवर किवें करेगा। हालेलुया। क्या कहा मूसा को खुदा ने, तुम इस जमायत को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। हाँ, नहीं पहुंचाने पाओगे। तुम्हारा टारगेट ये था, तुम्हें मैंने बनाया था लीडर, तुम्हें मैंने भेजा मौजूदात के साथ, तुझे मैंने बोला भेजा निशानात के साथ कि तू खुदा के लोगों को जाकर छुड़ाए, तुझे मैंने फराउन पर फतह बख्शी, फराउन के सामने तेरी जो है वो इज्जत रखी, हर तरह से तुझे मैंने प्रमोट किया। लेकिन अब जो मकसद तू मिस्र से लेकर कनान तक तूने जाना था, अब तू मुल्क कनान में जाने नहीं पाएगा, तू एक काम कंप्लीट नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्या मूसा को उसी दिन खुदा ने हटा दिया? नहीं। मूसा फिर भी काम करता रहा, मूसा फिर भी चलता रहा, मूसा के साथ फिर भी आगे बहुत सारे काम फिर भी हुए। मूसा के बड़ा जबरदस्त आगे जाकर इनको लेकर वो चलता रहा, मूसा चलता रहा, लेकिन खुदा ने यहीं पर फैसला कर दिया था कि तुम उनके कनान च नहीं होने जाना, क्योंकि मूसा का मेन जो लीडरशिप का काम सी, उन्हें मूसा ने मुल्क के कनान से लोगों को लेके जाना सी, लेकिन खुदा ने उस मकसद से उसको हटा। हालेलुया। खुदा अपने कलाम को पूरा होता हुआ देखना चाहता, जो कलाम की तहकीर करता है, अपने आप को अपने आप पर हलाकत लाता है। मूसा ने इस बारे में खुदा के कलाम को, अब पता नहीं सिर्फ जज्बात में आकर, गुस्से में आकर कैसे हुआ, लोगों के प्रेशर की वजह से कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन हुआ तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई, या शायद उसके ज़हन में ये था कि पहले भी तो एक दफा कुरूज 17 बाब में मुझे खुदा ने कहा था कि जाकर चट्टान पर मार, तो मैंने मारा था, पानी निकल आया था। शायद उसको पुरानी बात याद आ गई हो, उसने कहा उस वक्त भी मैंने मारा था। पढ़े कुरूज 17 बाब कुछ 5वीं आयत, उस वक्त भी पानी का मामला था। एक वाकया इनकी जिंदगी में पहले भी हो चुका है, पहले भी एक दफा पानी की कमी आई, तो खुदा ने इससे कहा था, 5वीं आयत पढ़ दे सिर्फ। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को एक को अपने साथ ले। हाँ जी, आगे। और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेता जा। हाँ जी, आगे पढ़े। देख मैं तेरे आगे जाकर वहां पूरब की एक चट्टान पर खड़ा हूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तो उस चट्टान पर मारना। यहाँ पर खुदा तो कह रहा है चट्टान पर मारी तो पानी आ जाएगा, लेकिन जेड़ा वाक्य असी पहला पढ़िया वा ओथे खुदा ने कहा सिर्फ कहना जा, छोटा जी थोड़ी जी गल है जेड़ी मूसा गड़बड़ होगी मूसा को, लेकिन खुदा ने मूसा नूं यह फैसला सुना दिता कि तेनू हुण मैं मुल्के कनान दे विच मैं नहीं जाना। हालेलुया। मैं और आप जब कलाम सुनते हैं तो असी ते उन्नी भी है, पता नहीं की कर जाना। गिनती की किताब 32वां बाब निकालें, गिनती की किताब 32 32
इस्तिश्ना 34 बाब और उसका उसकी 5वीं आयत भी पढ़नी है आपने और पहले इसकी पढ़नी है 32 बाब की 51 वर्ष 50वीं आयत पढ़नी जल्दी से 32 बाब। और उसी पहाड़ पर 50वीं आयत 32 की 50वीं आयत इस्तिश्ना 32 बाब 50वीं आयत में लिखा है और उसी पहाड़ पर और उसी पहाड़ पर जहाँ तू जाए हाँ जी वफात पाकर हाँ जी अपने लोगों में शामिल हो। आज मूसा को खुदा ने खुद बुलाया से कहना उस पहाड़ पे आजा बस सुन तेरा टाइम पूरा हो गया उस पहाड़ पे आजा होते हो बस तुम अपने बाप दादा ना मिल जा आगे तेरा भाई हारून हूर के पहाड़ पर मरा हाँ जी और अपने लोगों में जा। हाँ जी हारून पहले मर चुका है और हूर के पहाड़ पर हाँ जी अपने लोगों में जा मिला। हाँ ये सजा दोनों के लिए थी सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी बल्कि हारून के लिए भी थी और मूसा के लिए भी थी आगे इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इस्राएल के दरमियान दश्ते सीन के कादिश में मरीबा के चश्मा पर मेरा क्या किया था क्या गुनाह था यही गुनाह था जो कैसे पिछले पढ़ के आ रहे हैं कितना बड़ा गुनाह सिर्फ खुदा ने क्या के कहना है और उन्होंने बेचारे ने क्या नहीं मार देता इन्ना किसी लेकिन खुदा कहता है गुनाह है हालेलुया कहता तुसी दोनों ने मेरा की कीता सी गुनाह कीता सी हाँ जी क्योंकि तुमने बनी इस्राएल के दरमियान मेरी तकदीस ना की खुदा मुझे कोई गल देन चाह रही है बार-बार खुदा एक कोई कह रहा तू मेरे कलाम की तकदीस नहीं की तू मेरे कलाम की तकदीस नहीं खुदा है जो दिल भाई बैठ तू मेरे नाम तो गुदश्ते सीन च मेरे नाम कीता हुन तुसी दोवां ने कीता सी गुनाह हारून ने भी ते मूसा ने भी मूसा छोटा सी ते हारून बड़ा सी और मूसा बड़ा सी ते हारून छोटा सी खुदा दी नजर जी आगे फिर क्या हुआ सो तू उस मुल्क को हाँ जी अपने आगे देख लेगा ऊंचे सारे पहाड़ पे खड़ा करके खुदा कहता कि देख ले ओके तू जा लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इस्राएल को देता हूँ हाँ जी जाने ना पाएगा क्योंकि तूने मेरा क्या किया है गुनाह किया तो गुनाह के ना के छोटा जा सिर्फ खुदा ने क्या सी कहना है इन्हें जाके छोटी मार देती हालेलुया जो कलाम की तहकीर करता है अपने ऊपर हलाकत होना। इसके बाद यशवा जो है वो अपने लोगों को लेकर गया हालेलुया। आज मैं और आप भी कलाम सुनने आए हैं और सुन रहे हैं साथ साथ और लोग सुबह में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने टीवी पर सुना होगा बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर सुना होगा बहुत सारे लोग फेसबुक पे सुन रहे होंगे बहुत सारे लोगों के पास अब कलाम किसी वक्त भी आपसे हो सकता है ये ज़हन में रखें कभी भी आपसे कलाम हो सकता है आपके शौहर के वसीला से आपकी बीवी के वसीला से आपके बेटे के वसीला से आपकी अम्मा के वसीला से आप कोई भी बंदा किसी भी वक्त कलाम दी तो गल कर रहा है सुन लो खुदा ही गल कर हालेलुया ते कहता है तुसी मेरा की कीता है अब हम जब सुन के जाते जब हम कलाम सुनते हैं हमें खुदा की हजूरी में आना जरूरी है हम नहीं आते हमें इबादत करना जरूरी है हम नहीं करते हमें ये करना मना है हम वही करते हैं हमें तौबा करनी चाहिए बात इंशाल्लाह जोर ला रहे हैं सारा कुछ कह रहा था असि कहने ऐसी नहीं करनी तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर मूसा को खुदा नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा अगर मूसा का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आया था तो कभी हमारा रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता इसको भी जल्दी नहीं इस्तिश्ना तक ले आया खुदा इसको 2 किताबें बीच में पूरी गिनती की किताब निकल गई बहुत सारे वाकयात निकल गए खुदा इसके साथ भी रहा खुदा काम भी करता रहा खुदा मूसा की दुआएं भी सुनता रहा लेकिन ऐ गल खुदा के दिल च नहीं निकली खुदा फिर जान के कहता रहे ये तेन जानना तेन मुफ्ती कहता तेन गरीबा ने कहता क्या बात बताइए जो जबूर च कहना सी जदों कीता सी तुसी गरीबा मसा ते मरीबा मेरा गुनाह वो एक पंजाबी जबूर है ना इसी का उसके अंदर ये जो वाकया है ये गाया गया जब कीता सी मरीबा विच
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ हो जाता है। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਿਆ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਅਫਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, लेकिन फड़ा कौन गया? हालेलुया। अब मैं और आप आज सोचेंगे इस बात पर कि जो कलाम हम सुन के जाते हैं या समझते हैं या सुनते हैं, किसी भी तरह से हम तक पहुंचता है, तो हम उस पर कितना अमल करते हैं, हम उस पर कितना अमल करते हैं। एक एक चीज का पूछा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। लोग समझते हैं आसिफ के भाई से पागल हूं, पूरा फ्लोर लेके 2 दिन हम खोल देने, 7 लाख किराए कर देने। नो, ये खुदा पूछेगा, किससे? मुझसे भी पूछेगा। मैं क्लियर हो जाऊं? शुक्र है खुदा। हालेलुया। मैं इस उम्मीद पर नहीं करता, बल्कि मैं इस उम्मीद पर करता हूं कि मुझे खुदा ने पूछना है कि तुझे ये खिदमत दी थी, तुझे इन लोगों का बोझ दिया था, तुझे ये लोग जानते थे, तूने इनके लिए क्या इंतजाम किया? खुदा का खुदा मैं तो पूरा इंतजाम किया जिस तरह मैं कर सकता, जितना मैं बेहतर कर सकता। फिर उन्होंने पूछा जाएगा और तेरे लागे सी जानते क्यों नहीं सो, सजा मिलेगी। लेकिन एकदम कुछ नहीं होगा। मूसा नहीं होता खुदा, लेकिन खुदा से में रहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी नजरें पूरी जमीन पर सैर करती हैं और देखती रहती हैं। वो देख रहा है, इस वक्त भी मैं देख रहा है, जो जो यहाँ आया है उसको भी देख रहा है, जिस जिसको दावत दी गई है उसको भी इसने देखा है, जो जो उस दावत को देखकर नहीं आया उसको भी वो देख रहा है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मैं मुजरिम नहीं ठहराता, कलाम मुजरिम ठहराए। हालेलुया। कलाम मुजरिम ठहराए। बाइबल मुकद्दस इंसान की किताब 16 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ेंगे, याकूब का पहला खत, याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे। बस इसको एंड करते हैं। अब हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब अगली बात मैं आपको बताने लगा हूं कि इस कलाम को रखना है याद। जब भी आप कुछ कर रहे हो उसके अंदर खुदा के इंस्ट्रक्शंस लाजमी है। मूसा पानी निकालने जा रहा था, खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी, खुदा ने उसको बताया ऐसे ऐसे करना। अब कुछ भी कर रहे हो, खुदा की इंस्ट्रक्शंस, खुदा की कमांड्स, खुदा के अहकामात उसके अंदर मौजूद होते हैं। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ें जी। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। हाँ जी, कहते हैं लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। जिस तरह किया गया है उस तरह करो। कलाम पर अमल करने वाले बनो। हाँ जी। नाम महज सुनने वाले। हाँ, ना महज ये कि हम आए इबादत में और सुनकर चले जाए, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनकर सिर्फ चले जाते हैं वो किसी को धोखा नहीं देते। ना खुदा को धोखा किसी ने कभी दिया, ना खुदा को धोखा कोई दे सकता है, ना पादरी में तुसी दे रहे हो, बल्कि किसको कहता है? ना क्या कहता है? ना पढ़े, सुनने वाले ना बनो। ना महज सुनने वाले बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देते, अपने आप नसी धोखा देते। अगर खुदा का कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करते तो फिर किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। अपने आप को। हाँ जी, आगे। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला पहली बात तो ये कि कलाम का सुनने वाला हो, पहला लेवल, पहला सेटअप ये है जी। आगे। और उस पर अमल करने और फिर अगली बात कहते हैं, और उस पर अमल करने वाला ना हो, सिर्फ सुनी जाए तो अमल ना करे। आगे। वो उस शख्स की मानिंद है। हाँ जी, उस शख्स की मानद है, मिसाल दी गई है, जो अपनी कुदरती सूरत, जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। हाँ जी। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर। हाँ जी, कहते हैं कलाम सुन के चले जाना बिल्कुल ऐसी है जिवें इंसान शीशा देख के बाहर आवे ते बाहर आके भूल जाता है कि मेरे वाल इधर दे सन के इधर दे सन, मेरे ते कुछ लगा सी या नहीं, जिगर थले उतर फिर फिर वापस जाता देखने हैं। तो कहते हैं कलाम सुनने वाला जो है वो अगर सुनकर ऐसे ही चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? अपने आप को धोखा दे रहा है। आगे। और फौरी भूल जाता है, और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था जी। लेकिन जो शख्स आजादी लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा शख्स है जी। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है। हाँ जी, गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा। वो अपने काम में
बरकत पाएगा। काम में बरकत कैसे आएगी ये सुन लीजिएगा। चलिए आगे। कि सुनकर भूलता ये नहीं, सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अमल करता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनकर भूलता नहीं, तो भूलेगा नहीं तो फिर ही अमल करेगा। तो निकल जाए सारे भूल जाना तो अमल नहीं करना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एक बच्चे को हम चीज लेने भेजे, कोई फर्ज किया उसको अगर मिर्च लेने भेजे या चीनी लेने भेजे, तो वो निकले और निकलते सारी जा भूल जाए कि मैं लेने क्या गया हूँ, वहां जाकर दुकान पे अगर खड़ा भी रहेगा तो उसको वो चीज लेने वाली नहीं है, क्योंकि दुकानदार ये बोलेगा भाई लेने की है। वो फिर आएगा वापस, फिर पूछ के जाएगा, फिर उन्हें दसेगा तो चीनी या मिर्च मिले। हालेलुया। तो ये असली ये तो कलाम सुन के चल जाइए, याद न रखिए, अमल ना करिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा हाल भी वही हाल है। शीशे को देखा और फिर गए और फिर मोटे क्योंकि कलाम आईने की तरह काम करता है। हालेलुया। काम क्या कलाम क्या करता है? आईने की तरह काम करता है। भाइयों कलाम क्या है? आईना। कहो आईना। सेल्फी नहीं कहते, सेल्फी में कितनी तस्वीर आती है शायद सागर? सेल्फी तो बनाइए, कितनी तस्वीर आती है? दूसरे की आती है नहीं होती। फ्रंट कैमरा ऑन करो तो फिर सामने वाले की होती। तो कलाम क्या है? सेल्फी। ये हमारी सेल्फी बना देता है, हमें हमारी शक्ल दिखा देता है कि असली कितने लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। जो कलाम की क्या करता है? तहकीर करता है, वो अपने ऊपर हलाकत लाता है। लेकिन जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें। चल लोगों की खुदावंद आपको इस कलाम की वसीयत से बरकत। चल लोगों की अपनी आंखों को बंद करके जरा सोचें, आप कलाम पर अमल करते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा है, खुदावंद आपको बरकत। आप एक स्टेप एक लेवल आगे हैं दूसरों से। कुछ तो ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो सुनने आए ही नहीं, लेकिन आपने उस लेवल को पार कर लिया है। लेकिन आप उस जगह पर खुदा के सामने क्लियर है कि खुदावंद मैं सुनता रहा, लेकिन अगला स्टेप ये है कि क्या आप कलाम सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। फ्राइडे को हमने सीखा था कि कोशिश में सुस्ती ना। इस कलाम को जरा थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन में जगह दें कि मूसा ने थोड़ी सी गलती की, खुदा ने उससे कहा ये तूने गुनाह किया। आज हम बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो खुदा देख रहा होता है, खुदा हमसे बात करता है मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ जराए से, लेकिन क्या हम उस कलाम के मुताबिक अमल करते हैं? खुदा का कलाम कहता है इबादत करो, क्या हम करते हैं? खुदा का कलाम कहता है दुआ करो, क्या हम करते हैं? खुदा का कलाम ये कहता है कि बिला नागा दुआ करो, क्या हम करते हैं? खुदा का कलाम ये कहता है कि कलाम को रीड करो, पढ़ो, क्या हम पढ़ते हैं? खुदा का कलाम ये कहता है तौबा करो, क्या हम करते हैं? खुदा का कलाम ये फरमाता है कि बपतिस्मा लो, क्या हम लेने के लिए तैयार है? खुदा का कलाम ये कहता है कि रिफाकत में रहो, क्या हम लेने के लिए करने के लिए तैयार है? खुदा का कलाम ये कहता है कि तालीम लो, क्या हम तालीम लेते हैं? खुदा का कलाम कहता है कि वो रोटी तोड़ने में मशगूल रहे, वो पाकशराकत में शरीक होते रहे। क्या हम ये सारे काम करते हैं जो खुदा ने हमसे कलाम किया? अगर मेरी बहन मेरे भाई आप नहीं करते तो ये आज का कलाम खुदा ने इसीलिए किया है कि हम उस पर अमल करने वाले बने। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को ही धोखा दें, और ये एक दिन हमारे ऊपर ठंडा बन के आ सकता है। खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, आपको हमेशा अपनी हिफाजत करेंगे। मैं आपकी दुआ करना चाहता हूँ। या खुदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सारा इज्जत और जलाल तुझे देता हूँ, तेरे नाम को देता हूँ। खुदा इस वक्त इन घड़ियों लम्हात में खुदा इन तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा शफ़क़त और हाथ की जिंदगी में बढ़ जाए। खुदा तेरी कुदरत इनकी जिंदगी में काम करे, और ये आज का कलाम की जिंदगी में से फल लाए। तेरी कुदरत काम करती हुई नजर आए। आज का कलाम ये भूले ना, बल्कि याद रखे खुदा, और हर एक काम करने से पहले खुदा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, खुदा के अहकामात को फॉलो करे, खुदा की तरफ देखे कि क्या खुदा मुझे इस काम करने की वजह से कहीं मलामत तो नहीं करेगा। हालेलुया। खुदावंद सबको छूना प्लस करना, इन नौजवानों को खुदा अपने बरकत अपने जलाल में इस्तेमाल कर। यहाँ बैठी यार जिंदगी को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों खुदा अपने जलाल से इस्तेमाल कर। अपने लिए बरकत चाहता, अपनी अहलिया बच्चों के लिए खुदा अपने हम खिदमत भाई और शहर के लिए खुदा
उसकी अहलिया के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम लोग की भी बरकतें यीशु मसीह नासी के नाम से जारी करें। खुदा तेरा चला सारी चीजें जो यहाँ पड़ी हैं तूने प्रोवाइड की है खुदा, हम तेरे शुक्र करते हैं। खुदा दिन ब दिन तो हमें रोज बरोज बढ़ा रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आगे आने वाले दिनों में भी खुदा जिन चीजों की जरूरत है खुदा उनको प्रोवाइड कर। खुदा अपने जलाल को जाहिर करके खुदा वो हदिये नजराने खुदा जो ये लेकर आते हैं खुदा तो तेरे घर में इस्तेमाल होते हैं खुदा उसके बदले में इनको कसरत से बरकत देना। अगर कोई खुदा इस कदर तौफीक नहीं रखता खुदा उसकी जिंदगी में जलाल को जारी कर खुदा ताकि उसकी हाथ खुदा हमेशा देने के लिए खुले खुदा इस घर के लिए, तेरे घर के लिए खुदा, तेरे कामों के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से वो मानते और पालते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे जो भी आज मिले जितना हम अपने कर्ज को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा का फजल और उसकी रहमत हमेशा आप सबके साथ आप से लेकर अब तक रहे, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ।